Hello friends, I am Atul Nagarkar and here we will see UGC NET examinations, paper 2, Library and Information Science, which is conducted on 2022. So let's begin. This will be very useful video for your clearing NET or SET examinations. So let's start. So first question is the Marrakesh Treaty 2013 focuses on, and the option A, providing access to published works by visually impaired persons. Option B, providing access to published works for visually impaired persons. Option C, providing access to unpublished works by visually impaired person. Providing access to unpublished works for visually impaired person. First of all, we should know about what is the Marrakesh Treaty 2013. So I will explain here the Marrakesh Agreement. Treaty means agreement. What is Marrakesh? Marrakesh is the name of city which is at Morocco. And where is Morocco? Morocco in North Africa. That is the Morocco is the country which is in North Africa. And the treaty means agreement. The Marrakesh agreement we also can say Marrakesh Treaty or Agreement, also known as Marrakesh Treaty, is an international treaty or agreement that promotes access to published works. Here, published work. So, this is correct option, published work. Unpublished, not. Unpublished, not. And here, for visually impaired person. In second option, we can see for visually impaired person, not by. So option B is correct option. And here, Marrakesh Treaty, it is the agreement, it is international agreement that promotes access to published works for people with print disabilities. It was adopted in Marrakesh city in Morocco country in 2013. So we can discuss here about India. India has signature given the signature on this agreement on 30 April 2014, and it is came in force. The date is 30 September 2016. 2016। पहले तो ये समझना चाहिए कि मर्राकेश ट्रीटी क्या है। तो मर्राकेश ट्रीटी यह जो एग्रीमेंट है, जो विपो यह जो संगठन है, उन्होंने पब्लिश्ड वर्क्स ये जो है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए प्रोवाइड, उसका जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करने के लिए जो एग्रीमेंट किया है उसे हम मर्राकेश ट्रीटी कहते हैं। और वह एग्रीमेंट जो हुआ है वह विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए हुआ है। और कुल पूरे वर्ल्ड में 8 जून 2023 मतलब 8 जून 2023 टिल डेट 119 countries are participating or given the agreement for Marrakesh Treaty। तो यह मर्राकेश ट्रीटी के बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पे मैंने दी है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। मर्राकेश ट्रीटी फोकसेस ऑन
किस पे फोकस था? प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पब्लिश्ड वर्क। पब्लिश्ड वर्क्स का जो एक्सेस है वो प्रोवाइड करना है फॉर किसके लिए? विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, जो अंध लोग हैं उनको यह पब्लिश्ड वर्क का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए मर्राकेश ट्रीटी यानी मर्राकेश एग्रीमेंट फोकस करता है, जो कि इंडिया ने भी उसे अडॉप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच कमीशन रिकमेंडेड द नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज? कौन सा ऐसा कमीशन है जिन्होंने नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज को रिकमेंड किया था, उसकी सिफारिश की थी? ऑप्शन 1 राधा कृष्णन कमीशन, ऑप्शन बी कोठारी कमीशन, ऑप्शन सी चट्टोपाध्याय कमीशन, ऑप्शन सी नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है ऑप्शन डी, इन्होंने नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज को रिकमेंड किया है इस कमीशन ने। सो ऑप्शन डी नेशनल नॉलेज कमीशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ सेक्टर इन द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी 1977 was done by। यह जो किताब है द इंफॉर्मेशन इकोनॉमी 1977 में पब्लिश की हुई है, किसकी किताब है? तो इसका सीधा आंसर हम यहाँ लिखेंगे ऑप्शन बी M.V. पोरट। तो यह जो किताब है द एडिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज सेक्टर, इंफॉर्मेशन एज अ सेक्टर, इसका उल्लेख इस किताब में हो गया है और वह किसने लिखी है? M.V. पोरट इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द स्टडी ऑफ साइंस एंड कोर्स इज कॉल्ड। द स्टडी ऑफ साइंस एंड कोर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए सेमियोटिक्स, ऑप्शन बी बिजॉनिक्स, ऑप्शन सी साइबरनेटिक्स, ऑप्शन डी altmetrics, and the correct answer is semiotics। option A semiotics। the study of science and course is called, संकेतों की और कोर्स की स्टडी जो है या अभ्यास जो है इसे क्या कहते हैं? सेमियोटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in which year Berne Convention was signed to forbid discrimination against foreign authors and also to establish uniform treatment for protection of copyrighted works? Option A 1952, option B 1852, option C 1963, option D 1863, and the correct answer is 1863। in which year, कौन से साल में बेरने कन्वेंशन वॉज साइंड, बेरने कन्वेंशन साइन हो गया है टू फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉरेन ऑथर्स। फॉरेन ऑथर्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है मतलब उसमें जो भेद किया जाता था, एंड ऑल्सो established uniform treatment for protection of copyrighted works। ये जो फॉरेन ऑथर को कॉपीराइटेड वर्क है उसका जो भेद किया जाता था उसको मिटाने के लिए बेरने कन्वेंशन साइन हो गया 1863 में। तो उत्तर है 1863, 1863। Next question is question number 6. The Big Six model and approach was developed by option A Serap
Kurbanoglu, W. Edwards Deming, Torrington and L. Hall, Mike R. Eisenberg, and Bob Berkowitz. Option D is correct option. Mike Eisenberg and Bob Berkowitz. The Big Six model and approach was developed by बिग सिक्स मॉडल और अप्रोच किसने डेवलप किया है? माइक आइसनबर्ग एंड बॉब बेरकोविट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. हु प्रोमुलगेटेड द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कनिंग, लॉर्ड डलहौसी. प्रश्न क्या है? हु प्रोमोलगेटेड द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902? इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 का किसने विकसित किया? लॉर्ड कर्जन. ऑप्शन ए is correct answer. Who promulgated the Imperial Library Act in 1902? Lord Curzon promulgated the Imperial Library Act 1902. Who used the word information literacy in 1974? 1974 में इंफॉर्मेशन लिटरेसी इस शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन बी जुरकोस्की इज द करेक्ट आंसर. जुरकोस्की used the word information literacy in 1974. Question number 9. Fodor's Essential India is ऑप्शन ए ईयरबुक, ऑप्शन बी ट्रैवल गाइड, ऑप्शन सी डायरेक्टरी, ऑप्शन डी हैंडबुक. फॉडर्स एसेंशियल इंडिया इज ट्रैवल गाइड. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इट इज ट्रैवल गाइड. It is travel guide. Fodor's Essential India is travel guide. JSTOR is General Periodical Database, database of newspapers, database of conference proceedings, or option D Humanities and Social Sciences Periodical Database. Option D is correct answer. JSTOR is Humanities and Social Sciences Periodical Database. JSTOR क्या है? ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस का पीरियोडिकल का डेटाबेस है. Who has question number 11? Who has classified the documentary sources of information into the following category? Conventional, neo-conventional, non-conventional, and meta documents. And the answer is Dr. S.R. Ranganathan. S.R. Ranganathan. Option C is correct option. No C.W. Hansen, no Louis Shores, no Dennis Krogan, but the answer is S.R. Ranganathan. Who has classified the documentary sources? Documentary sources को कन्वेंशनल, न्यो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स में किसने क्लासिफाई किया? और यह उसका उत्तर है S.R. रंगनाथन. इन्होंने कन्वेंशनल, न्यो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स में क्लासिफाई किया है डॉक्यूमेंटरी सोर्सेस को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Propedia is part of
Propedia is part of. Option C, Encyclopedia of Britannica. Encyclopedia Britannica. प्रोपीडिया यह किसका पार्ट है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का. नो एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, एनसाइक्लोपीडिया इंडिका, नो मैग्रो-हिल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट प्रोपीडिया इज पार्ट ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका. Question number 13. Which kind of library involves in community information services? बहुत ही आसान प्रश्न है and the answer is option B, public library. Which kind of library? Public library involves in community information services. Question number 14. In which year SMS was tested? कौन से साल में SMS टेस्ट किया गया था? ऑप्शन सी 1992. 1992. Question number 15. When was NICNET started functioning? NICNET ने फंक्शनिंग कब स्टार्ट किया था? And the answer is 1977. In 1977, NICNET started functioning. Question number 16. Who publishes Medline? Medline कौन पब्लिश करता है? ऑप्शन डी नेशनल लेबोरेटरी ऑफ मेडिसिन, NLM पब्लिश करता है. Option D is correct answer. Question number 17. The notations in colon classification 7th edition comprises. कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी की 7th एडिशन में कितने नोटेशन अंतर्भूत है? 74 नोटेशंस. कितने नोटेशन अंतर्भूत है? 74 notations in colon classification 7th edition it comprises. Next question. Question number 18. BibFrame stands for. Option A, bibliographical framework. Option B, bibliographic framework. Option C, bibliography framework. Option D, biography framework. बायोग्राफी फ्रेमवर्क नहीं है, बिब्लियोग्राफी फ्रेमवर्क नहीं है, बिब्लियोग्राफिकल फ्रेमवर्क नहीं है, बट बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क. बिब फ्रेम क्या है? बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क. Option B is correct option. Question number 19. According to the guidelines of ANSI/NISO Z39.14, the recommended length of abstract is of words. ANSI/NISO Z39.14 इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कितने शब्दों में चाहिए यह गाइडलाइन में बताया है, और उसका आंसर है 250. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. नॉट 150, नॉट 200, नॉट 300, बट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ ANSI/NISO Z39.14, the recommended length of abstract is of words 250. Which one of the following is not a information retrieval model based on the theories and false? Philosophical model. It is not. Here, not is very important word. Rest, these are
information retrieval model based on theories which are linguistic model, option A, psychological model, option B, fuzzy logic model, option C. These are the information retrieval model, but only philosophical model is not a information retrieval model. So next question is question number 21. Agro-walk is option A, controlled vocabulary, option B, classification scheme, option C, catalog code, option D, full text database. Agro-walk is controlled vocabulary. Controlled vocabulary. Option A is correct answer. एग्रोवोक क्या है? अभी देखो यहाँ ओक से भी पता जाता है वोकैबुलरी होनी चाहिए. कंट्रोल्ड, एग्रोवोक कंट्रोल्ड वोकैबुलरी है. क्वेश्चन नंबर 22. राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन comes under option A, Ministry of Education, Government of India, option B, Ministry of Culture, Government of India, option C, Ministry of Culture, Government of West Bengal, option D, Ministry of Education, Government of West Bengal. तो यह वेस्ट बंगाल का कोई संबंध नहीं है. राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So option B is correct option, Ministry of Culture, Government of India. Question number 23. MIS is a mosaic of. तो MIS किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो यह ऑप्शन ए, मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. M for management, I for information, S for system. Not marketing, not material, not machines, but it is a management and information system, MIS. Option A is correct answer. Question number 24. Health Management Information System portal in India was launched in the year. Option A 2007, option B 2006, option C 2008, option D 2009. And the correct answer is option C 2008. In 2008, Health Management Information System portal in India was launched. 2008 में भारत में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ देम द प्रेसिडेंस डायग्राम्स यूज्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स? ऑप्शन ए कंट्रोल चार्ट, option B, Gantt charts, option C, digitally accurate response tracking in bracket DIRT, option D, functional task analysis. Which of them the precedence diagram? मतलब नीचे एक प्रेसिडेंस डायग्राम जो यूज़ की गई है डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए, वह कौन सी है? और वह है ऑप्शन सी, डिजिटली एक्यूरेट रिस्पॉन्स ट्रैकिंग. वह डर्ट है. डिजिटली एक्यूरेट रिस्पॉन्स ट्रैकिंग, डर्ट is the correct answer. Next question. Question number 26. In which of the pricing strategy the firm prices its product lower than others in the competition? मतलब कंपटीशन में
आपके प्रोडक्ट का प्राइस दूसरों के सिमिलर प्रोडक्ट के प्राइस से कम रखना, उस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बी पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन सी ज्योग्राफिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ऑप्शन डी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। उसे क्या कहते हैं? पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। Question number 27. Who has given 4 framework model of leadership? लीडरशिप का 4 फ्रेमवर्क मॉडल किसने दिया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट टैननबूम एंड वॉरेन स्किमिल्ड, ऑप्शन बी बोलमन एंड डील, ऑप्शन सी WJ रेड्डीन, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्लेक। 4 फ्रेमवर्क मॉडल जो लीडरशिप का मॉडल है वह बोलमन एंड डील इन्होंने दिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 28. Who propounded achievement motivation theory? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने बनाई है? ऑप्शन ए आल्डरफोर, ऑप्शन बी मैकक्लेलैंड, ऑप्शन सी हर्जबर्ग, ऑप्शन डी मैकग्रेगर। एंड द करेक्ट आंसर इज मैकक्लेलैंड, ऑप्शन बी मैकक्लेलैंड। इन्होंने अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 29. इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 सपोर्ट्स डैश डैश बीट एड्रेस। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 128, ऑप्शन डी 256। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 यह कौन से बिट एड्रेस को सपोर्ट करता है? और उसका आंसर है 128 बिट एड्रेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. ASCII uses dash dash bits to code each character. Option A 7, option B 8, option C 9, option D 24. ASCII uses 7 bits to code each character. Option A 7 is correct answer. ASCII uses 7 bits. ASCII 7 bits का यूज करती है टू कोड ईच कैरेक्टर, ईच हर एक कैरेक्टर को कोड करने के लिए ASCII 7 बिट का यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 31. विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय पिंग कमांड? ऑप्शन ए TCP, ऑप्शन बी UDP, ऑप्शन सी ARP, ऑप्शन डी ICMP। Which protocol is used? ICMP protocol is used by ping command. Option D ICMP is correct answer. ping command द्वारा ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32. विच फर्स्ट वर्जन ऑफ ई ग्रंथालय का ऐसा पहला वर्जन वॉज मेड अवेलेबल ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल किया गया, ऐसा ई ग्रंथालय का पहला वर्जन कौन सा है? ऑप्शन ए EG 1.0, ऑप्शन बी EG 2.0, यहाँ EG ई ग्रंथालय, ऑप्शन सी EG
3.0, option D EG 4.0. EG 4.0 is the answer. Which first version of eGranthala? EG 4.0 is the first version of eGranthala was made available on cloud platform. क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जो अवेलेबल किया गया वह ई ग्रंथालय का पहला वर्जन, उसका नाम है EG 4.0. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 33. द कैरेक्टरिस्टिक वॉल्यूम ऑफ बिग डेटा इज रिलेटेड टू. बिग डेटा में वॉल्यूम, यह जो कैरेक्टरिस्टिक है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साइज ऑफ डेटा, ऑप्शन बी टाइप ऑफ डेटा, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी अनसर्टिनिटी ऑफ डेटा. और यह साइज, ऑप्शन ए साइज ऑफ डेटा, वॉल्यूम ऑफ बिग डेटा इज रिलेटेड टू साइज ऑफ डेटा. And the option A, size of data, is correct answer. Question number 34. The language used by RDF is called. RDF द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन ए RDE XML, ऑप्शन बी HTML ऑब्लिक RDF, ऑप्शन सी RDF ऑब्लिक HTML, ऑप्शन डी RDF SGML. नो RDF SGML, नो RDF HTML, नो HTML RDF, but RDE oblique XML. This language RDE oblique XML language used by RDF is called. ये जो है RDE ऑब्लिक XML, यह लैंग्वेज यूज की जाती है RDF द्वारा. ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 35. विच डिजिटाइजेशन प्रोग्राम was initiated by National Library of India. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा शुरू किया गया डिजिटाइजेशन प्रोग्राम कौन सा है? ऑप्शन ए डाउन द मेमोरी लेन, ऑप्शन बी ड्वेयर ज्ञान संपदा, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, ऑप्शन डी आत्मनिर्भर भारत. And option A is correct answer, down the memory lane, down the memory lane. This digitization program was initiated by National Library of India. Question number 36. In wireless communication, base station is connected to central hub called. सेंट्रल हब से कनेक्ट किया गया बेस स्टेशन जो वायरलेस कम्युनिकेशन में है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए PSTN, ऑप्शन बी MSC, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी PBX. एंड द आंसर इज MSC. Option B is correct answer. In wireless communication, base station is connected to central hub called MSC. Question number 27. The scientific method of research is not based on empirical not. यहाँ not को हमें ध्यान में रखना होगा. The scientific method of research is not based on empirical evidence. Option A
empirical evidence. Option B, objective consideration. Option C, probabilistic prediction. Option D, subjectivity. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च इज नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एविडेंस. वैसे तो एम्पिरिकल का अर्थ क्या है? प्रायोगिक, विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, विच इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल. तो साइंटिफिक मेथड जो शास्त्रीय पद्धति है अनुसंधान की या संशोधन की, उस संशोधन या अनुसंधान में एम्पिरिकल एविडेंस तो होना चाहिए. अगर वो है तो वह एम्पिरिकल एविडेंस है. अगर वो है तो वो ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन है. अगर वो एम्पिरिकल है तो प्रोबेबिलिस्टिक प्रेडिक्शन भी है. यहाँ पे नॉट यह शब्द लिखा है, इस वजह से वह सब्जेक्टिविटी अगर उसमें है तो वह एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है. इस वजह से आंसर क्या है? सब्जेक्टिविटी. मतलब सब्जेक्टिव, अगर जो अनुसंधान कर रहा है वह अगर बायस होगा, पार्शियल होगा, सब्जेक्टिव होगा, तो वह सब्जेक्टिविटी आ जाती है, तो वह इंपीरियल नहीं होगा. इस वजह से यहाँ इस प्रश्न का उत्तर सब्जेक्टिविटी है. क्वेश्चन नंबर 38. स्टैंडर्ड डेविएशन इज A/N. स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑप्शन ए एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएशन अराउंड द मोड, नहीं है. वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं है. एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएशन अराउंड द मीन, करेक्ट है. नॉर्मल डेविएशन अराउंड द मीन. एक तो पहली बात, स्टैंडर्ड डेविएशन यह एवरेज अमाउंट होती है, नॉर्मल डेविएशन तो नहीं होता, तो डी नहीं है. और दूसरी बात, वैल्यू ऑफ अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी नहीं है, तो यह दोनों नहीं है. तो अभी एवरेज वाले दो ऑप्शन रह गए. वह मोड का एवरेज नहीं रहता है, इस वजह से ये भी नहीं है. तो मीन का एवरेज रहता है. मीन एवरेज अमाउंट ऑफ वेरिएशन अराउंड द मीन. वेरिएशन यह शब्द भी मायने रखता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी. स्टैंडर्ड डेविएशन इज an average amount of variation around the mean. Option C is correct answer. Question number 39. Deliberate sampling is also known as. Deliberate sampling को हम किस नाम से जानते हैं, पहचानते हैं? ऑप्शन ए रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन बी पर्पजिव सैम्पलिंग, ऑप्शन सी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कोटा सैम्पलिंग. डेलिबरेट सैम्पलिंग को हम पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, पर्पजिव सैम्पलिंग कहते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्यों? क्योंकि हेतु के अनुसार हम जब सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, हमारा हेतु क्या है, हमारा पर्पस क्या है, तो ये डेलिबरेट और ये पर्पजिव, ये दोनों सैम्पलिंग के एक ही प्रकार हो गया. इस वजह से उसे हम पर्पजिव सैम्पलिंग भी कहते हैं. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 40. अ फॉर्म ऑफ इथनोग्राफी विच अप्लाइड टू ऑनलाइन और लार्जली ऑनलाइन कम्युनिटीज is known as. ऑप्शन ए नेटवर्क कम्युनिटी, ऑप्शन बी मेटा एथनोग्राफी, ऑप्शन सी नेटनोग्राफी, ऑप्शन डी ऑनलाइन असेसमेंट. ए फॉर्म ऑफ एथनोग्राफी विच अप्लाइड टू ऑनलाइन और लार्जली ऑनलाइन कम्युनिटीज. एथनोग्राफी का ऐसा फॉर्म है जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में अप्लाई होता है. उसे क्या कहते हैं? उसे ना तो नेटवर्क कम्युनिटी कहते हैं, ना तो मेटा एथनोग्राफी कहते हैं, ना तो ऑनलाइन असेसमेंट कहते हैं, बल्कि उसे नेटनोग्राफी कहते हैं. सी ऑप्शन
is the correct answer. Question number 41. The National Intellectual Property Rights Policy of India has been prepared by. द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी भारत में किसने विकसित की है, बनाई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्होंने तो नहीं बनाई है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन्होंने भी नहीं बनाई है। तो बचा कौन? बी एंड डी। बी एंड डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। मिनिस्ट्री of Commerce and Industry and Department of Industrial Policy and Promotion. Option C, B and D only is the correct answer. Question number 42. According to Goodman के अनुसार the information life cycle includes, information life cycle में इनका अंतर्भाव होता है किस किस का? A, design and creation of records, and C, circulation, access, loan, use. Restructuring of records नहीं होता है, मार्केटिंग नहीं होता है, बल्कि A एंड C इन दोनों का मतलब डिज़ाइन एंड क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इसका अंतर्भाव इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल में होता है, और सर्कुलेशन, एक्सेस, लोन, यूज़ इसका भी अंतर्भाव होता है। ए एंड सी ओनली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग आर काइंड्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस? विच ऑफ द फॉलोइंग आर काइंड्स ऑफ एक्सटेंशन सर्विस? एंड options are interlibrary loan, photocopy, reading circles, story hour for children, organizing a book fair. अभी इसमें एक्सटेंशन सर्विसेज कौन कौन सी है इसे हमें पहचानना है। रीडिंग सर्कल्स, दिस इज एक्सटेंशन सर्विस। देन स्टोरी आवर फॉर चिल्ड्रन, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन सर्विस। एंड organizing a book fair, this is also extension service. Photocopy and interlibrary loan, these are not extension services, but reading circles, story hour for children, organizing a book fair, these are kinds of extension services of library. So option C, C, D, E, C, D and E, these are the answer. Option C is correct answer. Question number 44. Which of the following are the products oblique services of InflipNet? नीचे 4 सर्विसेज या प्रोडक्ट दिए गए हैं इनफ्लिपनेट के, उसमें से कौन से सही 3 प्रोडक्ट इनफ्लिपनेट के हैं? तो पहला जो प्रोडक्ट है इंडिकैट, ये तो इनफ्लिपनेट का है। शोध सिंधु, यह भी इनफ्लिपनेट का है। विद्यानिधि यह नहीं है, और विद्यामित्र ये भी है। तो ए बी डी मतलब ऑप्शन ए यह करेक्ट ऑप्शन है। ए बी डी, इंडिकैट, शोध सिंधु और विद्यामित्रा, these are the products oblique services of InflipNet. Question number 45. The core collection of Web of Science includes, Web of Science कोर कलेक्शन कौन सा है? पहला ए, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपांडेड, सोशल साइंसेस साइटेशन इंडेक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स। ओनली डी is not. What D says? Agriculture, biology and environmental science, it is not included.
in the core collection of Web of Science. So, option B, A, B, C only. Option B is correct answer. A, B, C. Science Citation Index expanded. Social Sciences Citation Index. Arts and Humanities Citation Index. These are the core collection of Web of Science includes. Question number 46. Identify, पहचानिए, the fact sources among the following. नीचे कुछ fact sources दिए गए हैं, बल्कि 4 नहीं है, उसमें से 2 ही fact sources है और 2 नहीं है. तो 2 नहीं है वह कौन से है और 2 है वह कौन से आपको ढूंढना है. तो विटेकर्स आल्मनैक लंदन यह फैक्ट सोर्स है, ये तो फैक्ट सोर्स हुआ. स्टेटमन्स ईयर बुक न्यूयॉर्क ये भी फैक्ट सोर्स है. तो सी कोलंबिया गैजेटियर ऑफ द वर्ल्ड न्यूयॉर्क ये फैक्ट सोर्स नहीं है. करंट बायोग्राफी न्यूयॉर्क ये भी फैक्ट सोर्स नहीं है. आइडेंटिफाई द फैक्ट सोर्सेस अमंग द फॉलोइंग. A and B only. Whitaker's Almanac London and Statesman's Yearbook New York. These are the sources of fact. So option A and B only. These are the fact sources. Option A is correct answer. Question number 47. Web scale discovery services provide. वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है? कंटेंट प्रोवाइड करता है, डिस्कवरी प्रोवाइड करता है, डिलीवरी प्रोवाइड करता है. ओनली ब्लॉग कंटेंट्स प्रोवाइड नहीं करता है. कंटेंट डिस्कवरी डिलीवरी ये तीनों वेब स्केल डिस्कवरी सर्विस प्रोवाइड करता है. सो आंसर इज A, B, C only. Option D is correct answer. Option D is correct answer. Question number 48. Who were involved in coining the term RAID? RAID. 4 लोगों के नाम दिए हैं, उसमें से 3 लोग रेड इस टर्म को कॉइन करने के लिए इन्वॉल्व है, लेकिन एक ऐसा है जो कि इसमें रेड इस टर्म को इन्वॉल्व करने के लिए कॉइन करने के लिए उसका योगदान नहीं है, और वह है बी. वह कौन सा है? वह बी है. वह कौन है? बी है. विलियम केट्स नहीं है, बल्कि बाकी डेविड पीटरसन, गॉर्थ गिब्सन और ए, सी और डी है. रैंडी कैट्स ये है. जॉन गिब्सन भी नहीं है और विलियम केट्स भी नहीं है. ए, सी, डी. ऑप्शन सी इज आंसर. ऑप्शन सी इज आंसर. डेविड पैटरसन, उसके बाद सी गॉर्थ ए गिब्सन, उसके बाद डी रैंडी केट्स. जॉन गिब्सन और विलियम केट्स इन्होंने रेड टर्म कॉइन करने के लिए कोई योगदान नहीं दिया था, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं थे. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. The object-oriented programming is based on the following principles. Object-oriented programming नीचे जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वह प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस है? पहले तो हमें ये जानना है कि
एक प्रिंसिपल ऐसा है कि उस पर बेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है। वह कौन सा है? डेटा फिल्टर्स पे नहीं है। लेकिन इनहेरिटेंस उस पे बेस है। इनकैप्सुलेशन उस पे बेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन उस पे भी बेस द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो ए बी सी इज द आंसर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Question number 50. The standards for bibliographic information interchange and communication are. तो CPM और पेस्ट ये दोनों मैनेजमेंट के स्किल है। तो स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? ISO 2709, Z39.50 और 39.71. These are the standards for bibliographic information interchange and communication. So answer is option C, A, B, C. A, B, C. यहाँ प्रश्न क्या है? बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड कौन कौन से है? CPM और पेस्ट D और E नहीं है, बल्कि 3 है और वह A, B, C है। क्वेश्चन नंबर 51. What of the following statistical packages are used for data analysis? डेटा एनालिसिस के लिए नीचे जो स्टैटिस्टिकल पैकेजेस दिए हैं उसमें से कौन से यूज़ में लाए जाते हैं? उसमें मेंडेले और MS एक्सेस C और D यह दोनों भी नहीं है, बल्कि MS एक्सेल, SPSS और R, A, B, E only. Option B is correct option. तो MS Excel, SPSS और R, these statistical packages are used for data analysis. Question number 52. Which of the following are true of SILIP? SILIP के बारे में 3 बातें ऐसी है जो कि ट्रू है, लेकिन एक बात ऐसी है, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि ट्रू नहीं है। वह कौन सा है? इट पब्लिशेस लिसा। लिसा का पब्लिशन सिलिप करता नहीं है, तो सी तो नहीं है। तो फिर ट्रू 3 बातें कौन सी है? वह A, B, D। अभी A, B, D क्या है? फॉर्मरली नोन एज एस्लिम। फॉर्मरली नोन एज एस्लिम। सिलिप का पुराना नाम क्या है? ASLIB। यह पुराना नाम है, सही है। दूसरी, फॉर्म्ड इन 2002। तो सिलिप की स्थापना 2002 में हो गई थी, यह भी सही है। और हेड क्वार्टर्स एट लंदन। सिलिप का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। तो ऑप्शन बी में ABD ओनली इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन? जॉब डिस्क्रिप्शन के नीचे 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन एक एलिमेंट नहीं है। वह कौन सा नहीं है? 5 ऑप्शंस है, उसमें से 2 एलिमेंट नहीं है। पहला तो C, जॉब सेटिस्फैक्शन, वह जॉब डिस्क्रिप्शन का एलिमेंट नहीं है। और जॉब मोटिवेशन, यह भी एलिमेंट जॉब डिस्क्रिप्शन का नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट है? जॉब समरी, जॉब आइडेंटिफिकेशन एंड जॉब एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स। ABD। तो ABD कहाँ पे है? बी आंसर है। बी इज द आंसर। जॉब समरी, जॉब आइडेंटिफिकेशन, जॉब एक्टिविटीज एंड प्रोसीजर्स, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54. Which of the following provides cloud-based Koha to the libraries? Libraries को cloud-based Koha provide नीचे में से 2 कंपनी है, वह प्रोवाइड करती है। वह कौन सी है? तो उसमें ड्यूरास्पेस तो नहीं है, अमेज़ॉन भी नहीं है, तो बचे कौन से? B एंड D।
बी एंड डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बी क्या है? लिबलाइम। बी क्या है? लिबलाइम। और डी क्या है? इन्फॉर्मैटिक्स। इन्फॉर्मैटिक्स। सो बी एंड डी ओनली। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप्ड फॉर। एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप क्यों की गई थी? किस लिए की गई थी? रेंडरिंग रेफरेंस सर्विसेज, सर्विस आर। तो रेफरेंस सर्विस देने के लिए। तो वह कौन सी है एक्सपर्ट सिस्टम? वह है पॉइंटर और प्लेक्सस। पॉइंटर और प्लेक्सस। हैमलेट और पैंडोरा नहीं है। हैमलेट भी नहीं है, पैंडोरा भी नहीं है। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए एंड बी ओनली। एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप्ड फॉर रेंडरिंग रेफरेंस सर्विस। Expert system developed for rendering reference service are pointer and plexus. Pointer and plexus are the reference service. Question number 56, chemical abstracts include। chemical abstracts में क्या क्या include है? author index include है, keyword index include है और patent index भी include है। region index include नहीं है, publisher index भी include नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ए बी सी ओनली। ऑथर इंडेक्स, कीवर्ड इंडेक्स, पेटेंट इंडेक्स, ए बी सी, दीज आर इंक्लूडेड इन केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट में ये सारे इंक्लूड है, ऑथर इंडेक्स, कीवर्ड इंडेक्स और पेटेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 57, प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स यूज्ड इन प्रेसिस आर। असेंबली नहीं है, ई पार्ट एंड प्रॉपर्टी भी नहीं है, की सिस्टम, एक्शन, परफॉर्मर ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन, दीज आर प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स यूज्ड। कौन कौन से प्राइमरी रोल ऑपरेटर्स है? की सिस्टम मतलब बी, उसके बाद एक्शन सी, उसके बाद परफॉर्मर ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन डी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ PPBS। यह एक बजटिंग सिस्टम है और यह बजटिंग सिस्टम में फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच आर दे? ए combines program budgeting and performance budgeting। ओके, तो उस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है प्रोग्राम और परफॉर्मेंस का, इट कंबाइंस। और दूसरा क्या है? बी साइंटिफिक अप्रोच ऑफ बजटिंग, और दिस इज द साइंटिफिक अप्रोच है, बजटिंग का एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये दोनों करेक्ट है, लेकिन करेक्ट कौन सा नहीं है? सी करेक्ट नहीं है, फॉर्मूला इज यूज्ड ये करेक्ट नहीं है, और डी भी करेक्ट नहीं है, बल्कि ए और बी करेक्ट है और ये ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए बी, कंबाइंस प्रोग्राम बजटिंग एंड परफॉर्मेंस बजटिंग। PPBS का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम, साइंटिफिक अप्रोच ऑफ बजटिंग। तो दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद TQM। तो TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और नीचे तीन चीज़ें ऐसी है जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित है, वह कौन से है? यहाँ तो TQM में ई को पहले देखिए, टोटल पार्टिसिपेशन। तो टोटल पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। सी को देखिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी ज़रूरी है। और ए देखिए, प्रिवेंशन एंड ज़ीरो डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स नहीं होगा तो ही इम्प्रूवमेंट होगा। इस वजह से तीनों करेक्ट है। और एसोसिएटेड नहीं है ऐसे कौन है? डायरेक्टिव्स, बी एसोसिएटेड नहीं है TQM से। और डी बेस्ड ऑन स्लोगन्स, एग्जॉर्टेशंस एंड डिपेंडेंस ऑन सुपरविजन, टोटल पार्टिसिपेशन।
तो ये भी नहीं है। तो उसमें क्या क्या है, ए प्रिवेंशन एंड जीरो डिफेक्ट्स, सी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड ई टोटल पार्टिसिपेशन, ए सी ई ओनली। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60, बायोसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू। बायोसिस इंफॉर्मेशन सर्विसेज किसे प्रोवाइड करता है? सोशल साइंसेस को नहीं करता है, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग को नहीं करता है, बल्कि बायोसिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज टू बायोलॉजी, जूलॉजी, एंटोमोलॉजी। सी डी ई, सी डी ई, ऑप्शन सी is correct option or correct answer. Question number 61, the qualities of a good notation are: should convey order clearly, should be hospitable to new subject, should be mnemonic, should be mnemonic, शुड बी न्यूमेरिक नहीं है। देखिए बी जो है वो न्यूमेरिक है, न्यूमोनिक होना चाहिए लेकिन न्यूमेरिक नहीं है। शुड बी अल्फ़ाबेटिक, ऐसा भी नहीं है, बल्कि द क्वालिटी ऑफ गुड नोटेशन, नोटेशन की अच्छी क्वालिटी कौन सी है? शुड बी न्यूमेरिक, संकेत होने चाहिए। शुड बी हॉस्पिटेबल, न्यू सब्जेक्ट को आप उसको जगह देंगे। शुड कन्वे ऑर्डर क्लियरली, जो ऑर्डर होगी वह क्लियरली आपको आगे इंडिकेशन देने में ज़रूरी होगी। तो ऑप्शन डी ए सी ई इज करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च इज, रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सी को देखिए, टू गेट अ रिसर्च डिग्री। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव डिग्री लेना यह नहीं हो सकता। टू गेट प्रोफेशनल बेनिफिट्स, प्रोफेशनल बेनिफिट लेना ये भी नहीं हो सकता। हाँ, हालांकि व्यवहार में ये सब चलता है, लेकिन यहाँ आइडियल आंसर देने के लिए सी और डी तो नहीं है। तो फिर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च क्या है? तो पहला देखिए, टू गेट फैमिलियरिटी विथ फेनोमेनन। तो जो आपने घटक चूज किया है उससे आप फैमिलियर होंगे, ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। बी देखिए, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप जो है उसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है, यह भी एक मेन ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में ई जो है देखिए यहाँ, टू पोर्ट्री एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑब्लिक सिचुएशन। तो एक्यूरेट कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढना और सत्य को बाहर निकालना, यह भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। इस वजह से ए बी ई, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द। क्वेश्चन नंबर 63, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन हाइपोथेसिस आर: फर्स्ट, इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। हाइपोथेसिस किस प्रकार होनी चाहिए? क्लियर और प्रिसाइज होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखिए, इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल का रिलेशनशिप आपको हाइपोथेसिस में लिखना चाहिए। और डी को पहले देखिए, इट शुड बी कंसिस्टेंस, उसमें कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है। अब क्या नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो सी ऑप्शन देखिए, इट शुड एक्सप्लेन द अर्लियर स्टडी रिजल्ट्स। तो हाइपोथेसिस में तो पहले जो हुए हैं वह रिजल्ट, उसका एक्सप्लेनेशन तो कोई ज़रूरी नहीं है, तो सी नहीं है। ई देखिए, इट मस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट्स दैट गेव राइज टू द नीड फॉर एक्सप्लेनेशन, ये भी नहीं है। इट मस्ट एक्सप्लेन द फैक्ट्स दैट गेव राइज टू द नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो ज़रूरी बातें हैं वह भी एक्सप्लेन करना चाहिए, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो हाइपोथेसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह तीन है। इट शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, ए, इट शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, बी,
and D, it should be consistent. तो option D is correct option. A, B, D only. Question number 64. Which of the following describes spatial library? तो स्पेशल लाइब्रेरी को डिस्क्राइब करने वाली 3 बातें हैं, वह कौन सी है हम देखेंगे. पहली बात, ए ऑप्शन, एम्फसिस ऑन हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मटेरियल रादर दैन एजुकेशनल मटेरियल. इंफॉर्मेशनल मटेरियल, एम्फसिस ऑन हैंडलिंग. एजुकेशनल मटेरियल कम होगा भी तो भी चलेगा, लेकिन वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए मटेरियल जो भी आप स्पेशल लाइब्रेरी में रख रहे हैं वह. दूसरी बात, बी देखिए, कलेक्शन इज डिलिमिटेड बाय सब्जेक्ट एरिया. मतलब आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो भी कलेक्शन है वो डिलिमिटेड होना चाहिए, बहुत सारा कलेक्शन होना चाहिए. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक वह भी डिस्क्राइब करता है स्पेशल लाइब्रेरी को. तीसरी, सी को देखिए, सर्विस इज प्रोवाइडेड टू फर्दर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेरेंट इंस्टीट्यूशन. मतलब वह जो लाइब्रेरी है या वह जो सब्जेक्ट है उन पेरेंट इंस्टीट्यूशन ने जो तय किए हुए वो ऑब्जेक्टिव है उससे संबंधित आपको सर्विस या सेवा को प्रोवाइड करना होता है. ये भी सही है. तो ए, बी, सी बिल्कुल सही है. कौन सा सही नहीं है? डी सही नहीं है. एनीवन कैन यूज द लाइब्रेरी. नो, स्पेशल लाइब्रेरी में जो स्पेशल यूज़र होते हैं उनको बहुत ज़रूरी होती है स्पेशल लाइब्रेरी के. कॉमन मैन कैन नॉट यूज, एनीवन कैन यूज द लाइब्रेरी. दिस इज फॉल्टी स्टेटमेंट. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. Emphasis on handling of information materials rather than educational material. A is correct. Collection is delimited by subject area. B is also correct. And C, service is provided to further the objectives of parent institution. Option A, B, C only is the correct. So option A is correct answer. Question number 65. Content management system, we can say CMS, possess following characteristics. तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में नीचे 2 वैशिष्ट्य दी गई है. तो वह कौन सी है? वह, इट इज अ स्टैटिक सिस्टम. दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CMS. एंड सी, डी, इट होल्ड्स ओनली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. नो, ओनली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इट होल्ड्स. नो, इट इज नॉट करेक्ट. सो rest to B and C we can see carefully. CMS provides an interface for content providers to add their content. Okay, content providers can add their content in CMS. In CMS it can be provides an interface for content providers. Okay, तो कंटेंट प्रोवाइडर उनका कंटेंट उसमें ऐड करने का प्रावधान है. सी, नॉलेज ऑफ HTML इज नॉट मैंडेटरी. HTML का आपको नॉलेज नहीं भी रहेगा तो भी आप कंटेंट को ऐड कर सकते हैं CMS में. तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक उसमें है, इसलिए B इज द आंसर. B एंड C ओनली. ऑप्शन B इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 66. Arrange the following in ascending order according to their year of origin. तो यहाँ A, FRBR, B, CCF, C, Mark 21 and D, RDA. तो यहाँ सबसे पहले कौन आया? CCF. कौन से साल में आया? 1932. उसके बाद कौन आया? मार्क 21. वह कौन से साल में आया? 1987. उसके बाद में कौन आया? FRBR. वह कौन से साल में आया? 1997. उसके बाद कौन आया? RDA.
RDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। तो यह RDA 2010 में आया। तो ऑप्शन ए को देखिए, BCAD इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द ईयर ऑफ देयर इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब क्या है? शुरू होना। तो नीचे जो डेटाबेसेस दिए हुए हैं वह शुरू में मतलब पुराने से नए तक हमको आना है। तो सबसे पुराना कौन सा है इसमें से? वह है सी, EI कॉम्पेंडेक्स। यह 1 नंबर पे आता है। उसके बाद 2 नंबर पे कौन आता है? बायोसिस। उसके बाद 3 नंबर पे कौन आता है? मेडलाइन। और 4 नंबर पे एग्रिस। तो इसका क्रम किस प्रकार बन जाएगा? CDBA, EI कॉम्पेंडेक्स, बायोसिस, मेडलाइन, एग्रिस। तो ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट एज पर देयर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। वैसे तो लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट बहुत सारे हो गए, लेकिन इन्होंने 4 ही दिए हैं और उन चारों के असेंडिंग नंबर में हमें उनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला जो आएगा इन सब में पुराना कौन सा है? वह है मणिपुर, या डी ऑप्शन, मणिपुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। उसके बाद पुराना मणिपुर के बाद हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। उसके बाद मिज़ोरम पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। इस वजह आंसर क्या हुआ? DCAB। पहले मणिपुर, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मिज़ोरम, उसके बाद गोवा पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, लॉजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग SDI शुड बी। तो पहले तो SDI का फुल फॉर्म क्या है? सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी सिलेक्टिव इस शब्द में ही बहुत सारा है। तो सिलेक्टिव मतलब क्या है? जिस साइंटिस्ट को, जिस यूज़र को, स्पेसिफिक यूज़र को आपको इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट भेजना है, उसको इन्फॉर्मेशन कैसे भेजेंगे? तो सबसे पहले तो आप उसका क्या करेंगे? यूज़र प्रोफाइल तैयार करेंगे। मतलब पहले तो आएगा सी, यूज़र प्रोफाइल तैयार करेंगे। उसके बाद उसे जो चाहिए, मतलब अगर वो केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, तो स्पेशल उस सब्जेक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस ढूंढना पड़ेगा। अभी डेटाबेस ढूंढने के बाद आप उसकी जो रिक्वायरमेंट है, फिजिक्स में भी उसका स्पेशलाइजेशन होगा, केमिस्ट्री में भी उसका स्पेशलाइजेशन, उस हिसाब से उसको उसके जो टर्म का मैचिंग करना पड़ेगा। तो तीसरा जो है वह आएगा ई। उसके बाद वह अगर मैच हो जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली या आप फिजिकली भी उसको नोटिफिकेशन दे सकते हैं, या उस डॉक्यूमेंट को आप उसे भेज सकते हैं। उसको उसको वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन हो जाने के बाद, या उसको जब भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो वह आपको करेगा फीडबैक। तो यह लॉजिकल जो स्टेप्स है वह कौन कौन सी है? पहले तो यूज़र प्रोफाइल बनाना होगा, मतलब सी आ गया। उसके बाद डेटाबेस, तो डी आ गया। उसके बाद मैचिंग, ई आया। उसके बाद नोटिफिकेशन, बी आया। और उसके बाद सबसे लास्ट में फीडबैक आया, तो ये आया CDEBA। तो यह ऑप्शन सी में आता है। तो ऑप्शन सी जो है, दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, अरेंज इन सीक्वेंस द स्टेप्स ऑफ ऑटोमेटेड एक्विजिशन। ऑटोमेटेड एक्विजिशन के लिए आपको स्टेप्स को सिक्वेंशियली अरेंज करना है। तो ऑटोमेटेड एक्विजिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
पहले तो ऑर्डर देनी पड़ेगी, मतलब पहले तो आएगा सी, उसके बाद रिसीव्ड आइटम प्रोसेसिंग, जो आइटम ऑर्डर देने का, जैसे ऑर्डर आपने वेंडर को दिया, फिर वेंडर ने आपको बुक्स को भेज दिया, तो जैसे ही आपके आइटम्स आ जाएंगे तो रिसीव्ड आइटम प्रोसेसिंग होगा, तो डी होगा। उसके बाद डी होने के बाद आप क्या करेंगे, रिसीव्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग, मतलब जो जिस वेंडर ने आपको बुक्स दिए उसका इनवॉइस जो आपको मिल गया है उसका प्रोसेसिंग होगा, तो वह आ जाएगा ई में। उसके बाद उसका प्रोसेसिंग हो गया, उसको बिल भी मिल गया, तो आप क्या करेंगे, क्लेम भी कर सकते। मान लो कि आपकी कोई किताब अगर गलती से दूसरी आ गई तो आप क्लेम भी कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा ए। और सबसे लास्ट में आपको अगर कैंसिल भी करनी है ऑर्डर तो भी आप कर सकते हैं, तो बी। जो इन्होंने दिए हुए जो ऑप्शंस है उसमें आपको लॉजिकल क्रम लगाना है, और उस हिसाब से आपने लगाया क्रम, ऑर्डरिंग सी, उसके बाद डी रिसीव्ड आइटम प्रोसेसिंग, उसके बाद ई रिसीव्ड इनवॉइस प्रोसेसिंग, उसके बाद क्लेम, और उसके बाद कैंसलेशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी डी ई ए बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल ऑर्डर। फिर लॉजिकल ऑर्डर लगाना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मतलब शुरू से अंत तक हमें लॉजिकल ऑर्डर लगानी है। और यह क्वेश्चन जो है वह रिसर्च मेथडोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पर पहले बी को देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च एरिया। तो रिसर्च एरिया का आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, मतलब रिसर्च एरिया को आपको पहचानना है। उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, आप रिसर्च, आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्शन करेंगे, उसके लिए क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ये टेक्निक्स यूज़ करके आप डेटा कलेक्शन करेंगे। और सबसे अंत में इस क्रम में आएगा एनालिसिस ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। तो पहले तो बी आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च एरिया। उसके बाद आ जाएगा ए, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद आ जाएगा डी, रिसर्च डिज़ाइन। उसके बाद आप करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, तो वो आ जाएगा सी। और लास्ट में आ जाएगा ई, एनालिसिस ऑफ डेटा। तो ये सब किस में आ जाता है, सी में आ गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, अरेंज द फॉलोइंग कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर in an ascending form according to their first released version। तो एक तो बात तय हो गई कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं वह सारे के सारे CMS है, सॉफ्टवेयर है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो उनका जो फर्स्ट रिलीज वर्जन है वह सबसे पुराना पहले आएगा, और सबसे उसके बाद में जो क्रम, लॉजिकल क्रम हमें यहाँ पे लगाना होगा। सबसे पुराना कौन सा है, सी है, द्रुपल है, द्रुपल सबसे पुराना है। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया वर्डप्रेस, तो ए आया, वर्डप्रेस सी ए। उसके बाद कौन आया, जुमला आया, तो जुमला 3 नंबर पे बी आया, सी ए बी। और सबसे लास्ट में कौन आया, मैग्नेटो, मैगेंटो, मैगेंटो, ये डी आया। तो सी ए बी डी ये क्रम हुआ, तो यह क्रम कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन डी में पाया जाता है, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द डेट्स ऑफ देयर फर्स्ट पब्लिकेशन। तो यहाँ पे 4 पब्लिकेशंस है और उनका फर्स्ट पब्लिकेशन डेट के अनुसार उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पुराना पहले आ जाएगा। कौन कौन से है, इंडेक्स मेडिकस, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इंपीरियल गैजेटियर ऑफ इंडियन, एनसाइक्लोपीडियन अमेरिका। ये जो है सबसे पहले कौन आया था, एनसाइक्लोपीडिया इन अमेरिकाना, इन अमेरिकाना, तो ये डी पहले आया, तो डी को हम लेते हैं। उसके बाद
1829 में आया। उसके बाद कौन आया? 1879 में इंडेक्स मेडिकस आया, तो ए आया। उसके बाद 1881 में सी आए, इम्पीरियल गैजेटियर ऑफ इंडियन, तो ये सी आया। उसके बाद सबसे लास्ट 1961 1961 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी आई, तो सबसे लास्ट में तो ये है DACB। अब यहाँ देखेंगे DBC आया है, लेकिन DACB यह ऑप्शन कहीं भी नहीं है। और बाद में UGC नेट एग्ज़ाम वालों को पता चला, तो फाइनल आंसर की में उन्होंने यह शब्द लिखा और इस प्रश्न के 2 अंक सबको दिए गए, सबको 2 अंक 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए हैं। तो ये ड्रॉप किया है, लेकिन हमें अभी पढ़ाई करते समय हमें याद रहना चाहिए, इस वजह से इसके सारे डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं। हमारा आंसर DACB है, लेकिन यहाँ तो यह ऑप्शन ही नहीं है। सो दिस क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड बाय नेट। सो यह जो ऑप्शंस है यह भी याद रखो, ताकि आपको अगली एग्ज़ाम में आपको अच्छी तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकें। क्वेश्चन नंबर 74, यह क्वेश्चन जो है जैसे 73 क्वेश्चन में हुआ था वही मसला यहाँ पे भी हो गया है। इस प्रश्न के 2 अंक सबको मिल गए हैं। तो यहाँ क्या है देखेंगे प्रश्न 74 क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन एन असेंडिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ डेवलपमेंट। तो यह नीचे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए हुए, उनका डेवलपमेंट ईयर भी दिया हुआ है। उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट्स बनाए हैं इस वजह से। तो यहाँ कौन कौन से लैंग्वेजेस दिए थे उन्होंने? कोबल, उसके बाद सी, उसके बाद जावा, उसके बाद फोर्ट्रान। तो यह ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट या डेवलपमेंट कब है उनका? सबसे पुराना कौन सा है? यह फोर्ट्रान है, डी है, ठीक है। उसके बाद कौन आया? फोर्ट्रान कब आया? 1954 में आया। उसके बाद 1959 में कोबोल आया। उसके बाद 1969 में सी आया। उसके बाद जावा 1995 में आया। तो यह जो है बी को कहेंगे, और ये तो DABC हुआ। तो यह DABC जो है ये DACB है, लेकिन यह तो गलत है। इस वजह से अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर 74 ऑल्सो ड्रॉप्ड बाय नेट। सो एवरीवन गॉट हियर 2 मार्क्स, बट फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन यू शुड रिमेंबर दिस ईयर ऑफ डेवलपमेंट। फोर्ट्रान in 1954, Java in 1995, C 1969 and COBOL 1959. So keep in mind that in these 4 languages Fortran is very old and Java is very young. Question number 75, arrange the facets for the given title as per the facet formula of colon classification. Devaluation of Indian currency in 1970s. तो यहाँ पे ऑप्शन डिवैल्यूएशन इंडिया, पेपर करेंसी, मनी 1970। तो यहाँ पे हमें पहले तो ये कोलन क्लासिफिकेशन में फैसेट फार्मूला जो है, या फार्मूला ऑफ कोलन क्लासिफिकेशन फैसेट फार्मूला, ये पता होना चाहिए। फैसेट फार्मूला कोलन CC में कौन सा है? PMEST। तो यह, तो सबसे पहले ये जो है ना, ये टाइम है, T को हम क्या कहेंगे? T फॉर टाइम। तो यहाँ पे टाइम कहाँ दिखता है? 1970। तो 1970 तो लास्ट में आना ही है। तो यह 2 ऑप्शन हुए, पहला तो ई, तो यह B और ये जो D है ये तो चला गया। उसके बाद 2 ही ऑप्शन बच गए। अभी देखिए ये जो स्पेस है, मतलब ये स्थान है, मतलब कोई कंट्री का नाम है, तो ये B आ गया। तो यहाँ तो ये सही हुआ, ये गलत हुआ। उसके बाद अभी पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, ये जो है ये आपको याद भी करने हैं
और यहाँ एस टी की वजह से आपका काम आसान, यहाँ तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है फैसेट फॉर्मूला, इसके ज़रिए भी आप उसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आया, मनी आया, ठीक है, उसको हम पर्सनल एज अ पर्सनैलिटी ले लिए यहाँ पे। उसके बाद सी आया, तो सी में पेपर करेंसी आया। उसके बाद डिवैल्यूएशन आया, उसके बाद इंडिया आया, और उसके बाद 1970 आया। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ, डी, सी, ए, बी, ई, तो ये हुआ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार PMEST यह फैसेट फॉर्मूला कोलन क्लासिफिकेशन में उपयोग में लाया जाता है। इसके ज़रिए आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में उन्होंने मॉडल दिए हैं, कम्युनिकेशन मॉडल, चार्ल्स ई ऑसगुड्स मॉडल, उसके बाद हैरोल्ड डी लासवेल मॉडल, शेनॉन एंड वीवर मॉडल, जॉर्ज गेरबर्नर्स मॉडल। तो यहाँ देखिए चार्ल्स ई ओसगुड मॉडल जो है 1954 में आया था, तो ये को 2 हुआ। उसके बाद हैरोल्ड डी लासवेल मॉडल जो है 1948 में आया, बी को 3 हुआ। शेनॉन एंड वीवर मॉडल जो है कम्युनिकेशन का, वह 1949 में आया, तो यह 1949 में आया। जॉर्ज गार्डनर मॉडल यह जो है 1956 में आया। तो इस प्रकार से हम आसानी से ए को 2, बी को 3, सी को 4 और डी को 1, इस प्रकार हम जोड़ियाँ लगा सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अभी मैंने बाकी के ऑप्शन तो यहाँ पे लिखे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी जो ऑप्शन है और उसके जो ईयर है यही हमें देखने हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज दिए हैं और लिस्ट 2 में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। तो कौन कौन से टाइप है, स्पेशल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी। तो पहले देखेंगे स्पेशल लाइब्रेरी। स्पेशल लाइब्रेरी की जोड़ी जो है 2 को लगाई है। इट सर्व टू द नीड ऑफ द पर्सनल ऑफ पेरेंट बॉडी। यहाँ पे पेरेंट बॉडी के जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। अब पब्लिक लाइब्रेरी देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश्ड अंडर द क्लियर मैंडेट ऑफ लॉ। तो पब्लिक लाइब्रेरी का एस्टेब्लिशमेंट जो है क्लियर मैंडेट ऑफ लॉ, तो लॉ के अनुसार पब्लिक को सर्विस देने के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई जाती है। नेशनल लाइब्रेरी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, इट ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग द लिटरेरी प्रोडक्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री की जितने भी लिटरेरी प्रोडक्ट्स है वो कलेक्शन का काम नेशनल लाइब्रेरी करती है। एकेडमिक लाइब्रेरी एम इज़ टू हेल्प इन रिसर्च, टीचिंग एंड एक्सटेंशन। तो ए को 2, बी को 4, सी को 1 और डी को 3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके बुक्स के नाम दिए हैं। तो पहला ऑथर कौन सा है, केट्स ए। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस वर्क। उसके बाद रॉयली जे ई, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग। उसके बाद कौन है, डेनिस ग्रोगर, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर। उसके बाद रंगनाथन SR, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, रेफरेंस सर्विस। तो A3, B4, C1, D2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फाइल एक्सटेंशन दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में फॉर्मेट दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में .wav यह वीडियो फॉर्मेट है,
तो यह वीडियो फॉर्मेट है। डॉट PDF यह इंस्ट्रक्टेड फॉर्मेट है। डॉट PCD यह इमेज फॉर्मेट है। डॉट SND यह ऑडियो फॉर्मेट है। तो यहाँ देखिए ये जो है A3 B1 C2 D4 मतलब डॉट WAV यह वीडियो फॉर्मेट है। डॉट PDF यह स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। डॉट PCD यह इमेज फॉर्मेट है और डॉट SND यह ऑडियो फॉर्मेट है। इस प्रकार से ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इंफॉर्मेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में लोकेशंस दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में निकलाई, निकफॉस, निकमैप एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर्स है। अब निकलाई जो है यह चेन्नई में है, निकफॉस जो है वह मैसूर में है, निकमैप जो है वह बेंगलोर में है और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वह लखनऊ में है। तो इस प्रकार से जोड़ियाँ होंगी। फिर से मैं दोहराता हूँ, A3 निकलाई चेन्नई, B4 निकफॉस मैसूर, C1 निकमैप बेंगलोर and D drugs and pharmaceuticals Lucknow. Option C is correct option. Question number 81, match list 1 with list 2. लिस्ट 1 में propounders है और लिस्ट 2 में theories है। कौन सी थ्योरी किसने propound की है? जैसे पहले हर्जबर्ग, उसके बाद हुरूम, मैक्लेलैंड, एडविन लॉक। तो हर्जबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? हाइजीन थ्योरी दी है। वूम ने कौन सी थ्योरी दी है? तो वूम ने अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर नीड थ्योरी यह दी है। यहाँ हम B लिखेंगे, यहाँ A लिखेंगे। उसके बाद मैक्लेलैंड ने, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? तो उन्होंने ये वूम की थ्योरी जो है ये यहाँ थोड़ा गलत हुआ, फिर से हम देखेंगे। हर्जबर्ग ने जो थ्योरी दी है हाइजीन थ्योरी दी है। उसके बाद वूम की थ्योरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। उसके बाद मैक्लेलैंड, इनकी है अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर नीड थ्योरी। उसके बाद एडविन लॉक, इन्होंने जो थ्योरी दी है वो गोल सेटिंग थ्योरी दी है यह। तो यहाँ आंसर हुआ A3 हर्जबर्ग हाइजीन थ्योरी, ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मैक्लेलैंड अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर नीड थ्योरी एंड D एडविन लॉक गोल सेटिंग थ्योरी। ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन पेपर में सबसे आसान प्रश्न मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 82, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्लासिफिकेशन स्कीम्स दिए और उसके ईयर दिए हैं। तो DDC का ईयर हम सबको याद है 1876, UDC 1905, CC 1933 और LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904। ऑप्शन A इज करेक्ट ऑप्शन, A3 B4 C2 D1। क्वेश्चन नंबर 83, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में OSI लेयर दिए हैं, लिस्ट 2 में फंक्शंस ऑफ लेयर दिए हैं। OSI लेयर में 1 2 3 4 लेयर है, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये 4 जो लेयर है उसके फंक्शंस दिए हुए हैं। फिजिकल लेयर प्राइमरीली कंसर्न विद द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। उसके बाद नेटवर्क लेयर कंसर्न विद
orderly exchange of data between computers connected on LAN. उसके बाद transport layer ensure data is received reliably by the receiver. और transport layer, network layer के बाद transport layer, यह transport layer जो है वह नहीं, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट लेयर का तो हुआ। जैसे मैं फिर से दोहराता हूँ, फिजिकल लेयर प्राइमरीली कंसर्न विद डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। उसके बाद नेटवर्क लेयर कंसर्न विद ऑर्डरली एक्सचेंजेस ऑफ डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑन लैन। ट्रांसपोर्ट लेयर ensures data is received reliably by the receiver, and application layer supports मेल ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र, रिमोट लॉगिन एट्सेट्रा। तो आंसर क्या हुआ? A4, B1, C2, D3। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 84, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में इंस्टीट्यूट्स दिए हैं, लिस्ट 2 में टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज दिए हैं। अभी हमें जानना है कि वह इंस्टीट्यूट कौन से टाइप में आ जाती है वहाँ की लाइब्रेरी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस लाइब्रेरी, वह आ जाते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, इट इज़ पब्लिक लाइब्रेरी। बार्क लाइब्रेरी, R&D लाइब्रेरी। TCS लाइब्रेरी, इट इज़ कॉरपोरेट लाइब्रेरी। तो A को 2, B को 3, C को 4, D को 1। इस प्रकार ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मेथड्स, प्राइमरी टेक्निक्स। लिस्ट 1 में मेथड्स दिए हैं और लिस्ट 2 में प्राइमरी टेक्निक्स दिए हैं। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का एनालिसिस करते समय रिकॉर्ड्स ऑफ नोट्स कंटेंट एनालिसिस, इससे उसकी जोड़ी आती है A4। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स B3। स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन, मैनिपुलेशन, कंटेंट एनालिसिस। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, वह C। तो C1 ऑब्जर्वेशनल बिहेवियरल स्केल, यूज ऑफ स्कोर कार्ड्स। उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरनेशनल रिकॉर्डिंग, पॉसिबल यूज ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डर्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। दो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक है स्टेटमेंट 1 और दूसरा है स्टेटमेंट 2। अभी देखेंगे पहला स्टेटमेंट क्या है। ए नेचुरल लैंग्वेज इज डेवलप्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़ अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो यह स्टेटमेंट, नेचुरल लैंग्वेज जो डेवलप हो गई है वह मनुष्य के आइडियाज़, वो कल्पना एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए ही नेचुरल लैंग्वेजेस बन गए हैं। तो यह सही है। स्टेटमेंट 2, एन इंडेक्सिंग लैंग्वेज इज एज अनकंट्रोल्ड लैंग्वेज। तो इंडेक्सिंग लैंग्वेज तो कंट्रोल्ड होती है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट A1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज labeled as assertion A and other is labeled as reason R. तो assertion, what assertion is? Cloud computing is facilitating the libraries for pooling the resources. Pooling the resources. तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है लाइब्रेरीज को यह फैसिलिटी देता है कि वह दो रिसोर्सेज के बीच को जोड़ता है या दो रिसोर्सेज को जोड़कर यूज़र को प्रोवाइड करने में मदद करता है। यह सही है। रीज़न, रिसोर्स पूलिंग हैज़ हेल्प्ड द लाइब्रेरीज टू शेयर स्किल्ड मैन पावर इन क्लाउड। तो स्किल्ड मैन पावर को तो नहीं कर सकते, रिसोर्सेज को हम दे सकते हैं, पूल बना सकते हैं, तो यह गलत है।
तो A is true but R is false. So option C is correct. Question number 88. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion क्या है देखिए, पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया एम्फोसाइज ऑन लाइब्रेरी सेस, बराबर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ लाइब्रेरी सेस लिया जाता है, इनैक्टमेंट हो गया है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद रीज़न क्या है देखिए, द स्टेट्स नॉट हैविंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डू नॉट हैव ए प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस। तो जिस राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है तो वहाँ सेस लेने का कोई प्रोविजन भी नहीं है। तो ये भी वाक्य सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। नीचे दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। क्या है पहला स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज फीडबैक मैकेनिज्म टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इन लाइब्रेरीज। तो यहाँ पे लाइब्रेरीज में जो फीडबैक मैकेनिज्म चलाया जाता है वो सपोर्ट लाइब्रेरियन को करता है, वो डिसीजन ले बहुत सारे डिसीजन लेने में मदद करता है, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इज सिंपली कंसर्न विद कलेक्टिंग डेटा एसोसिएटेड विद प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। अभी देखिए स्टेटमेंट 2 क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट is simply concerned with collecting data assisted with predetermined goals and quantitative in nature। तो यह गलत है, स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A vibrant intellectual property ecosystem is an asset for the intellectuals। तो अच्छी बात है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इकोसिस्टम जो है इंटेलेक्चुअल पीपल के लिए उनका एसेट है, तो बिल्कुल सही है, ये वाक्य गलत नहीं है, सही है। रीज़न क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द क्रिएटर्स फ्रॉम मिसयूज। मिसयूज से रोका जा सकता है क्रिएटर्स के राइट्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन की वजह से। आईपीआर बहुत इंपॉर्टेंट, तो वह भी सही वाक्य है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 90, तो यह जो क्वेश्चन है यहाँ तो प्रश्न 90 या 90 वाला प्रश्न है, वहाँ शुरू करने से पहले उन्होंने एक पैसेज दिया है, इस पैसेज को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके नीचे जो 5 प्रश्न दिए हैं उस 5 प्रश्नों के सीधे उत्तर दिए जाएंगे। यहाँ तो हमें कोई डिस्कशन के लिए इतना मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उत्तर जो है वह करेक्ट आंसर मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। रीड द गिवन पैसेज, read the given passage and answer the questions that follows 91 to 95। क्या है पैसेज देखिए, ए सेंचुरी एगो लाइब्रेरी सर्विसेज वेयर फोकस्ड ऑन आर्किटेक्चर, फिजिकल वर्कफ्लो डिज़ाइन एंड अर्बन प्लानिंग। Planning the physical environment is still important, but more often than not, it serves the backdrop for patrons operating in a world dominated by online information sources. The experience and preferences of library users is being affected by other non-library services much as Amazon, Google, Facebook, Twitter, and social question and answer sites, etc. Library catalogs have long been the point of discovery and delivery of content. People want to find information
quickly and conveniently, and they expect the interface to be familiar to them. Unfortunately, libraries have not consistently employed their usage data to fully mobilize discovery service in the same way as Google, providing seamless points of access to the content people discover through other online services could be a point of distinction for libraries. A study concluded that access, not a discovery, is the major challenge for today's information seekers who may be better served by online library catalogs that improve delivery and provide more links to more online content. It is true that services like Google help people discover content more quickly and conveniently, but their search results often leave them wanting more when faced with sifting through a lot of content. People want search engines that return information relevant to their search queries in order to minimize their need to evaluate the content. Now we will see question number 91 to 95. The questions are based on above article which I have just now read, and the first question or question number 91, major problem with tools like Google and Twitter. Which is major problem? Relevancy of information, not query formulation, not dealing with huge content, providing seamless points of access, but relevancy of information, that is the major problem of Google and Twitter. Question number 92. Oldest discovery tool is not accession register, not index, not Amazon, but catalog. Option C is the answer. Question number 93. The discussion in the paragraph is centered around not first law, not second law, not third law, but it is of fourth law of library science. Option D is correct answer. Question number 94. A century ago, library services were not focused on online solution, not focused on online solution. They can focus on planning, they can focus on physical workflow, they can focus on architecture, but not focused on online solution. Question number 95. Which of the following is a major challenge for today's information seeker? Content access is the major challenge, not content delivery, not content discovery, not content availability, but content access is the major challenge for today's information seekers. Again, I am reading the passage. Read the given passage and answer the questions that follows 96 to 100. A reading culture is an environment where reading is championed, valued, respected, and encouraged. Reading lies at the heart of the curriculum and it's of the utmost importance to child's personal, social, and academic success, as well as their general well being. Creating a reading culture should not be the responsibility of an individual, it takes dedication, perseverance, and effort. It's led by an enthusiastic and dedicated senior leadership team and advocated by every pupil, parent, career, and staff member in the school community. If reading is to become a lifelong habit, then people must see themselves as participants in a community that views reading as a significant and enjoyable activity. Parents and home environment
are essential in fostering a love of reading. Where a reading culture exists, children read to their own free will on a regular basis. Students select their own reading material at a time and place of their choosing. They are willing and active participants who anticipate the satisfaction they shall get from picking up a book. To make sure children don't experience reading difficulty and demotivation, we should ensure students become fluent and engaged readers from an early age. Creating a reading culture where students are disaffected, hold negative attitude, and whose reading ages are well below chronological can be challenging but not impossible. Building a strong reading culture puts reading at the forefront of school improvement. A creative and exciting reading culture not only breeds capable and committed readers, it boosts well being, community connectedness, and student outcomes. Children will need high levels of literacy in so many aspects of their lives. Not only is reading required for success in future employment, an ability to read will help children in future relationships when running a household and when navigating all aspects of their personal lives. Only competent readers will be able to access the wonders of the curriculum and thus improve their life chances. Question number 96. Reading culture of children should be cultivated during their early age. During their early age. What is the end result of reading culture? Improve life chances of individuals. Option C is correct answer. Which of the following which of the following is essential to build reading culture? Dedication and perseverance. Dedication and perseverance. Option D is correct answer. Question number 99. Creating reading culture breeds capable and committed readers. Option D is correct answer. Question number 100. This is last question. Where reading culture exists, students dash dash on their own. Select reading material. Option A is correct answer. I hope it may helpful for you for clearing net or set examination. My best wishes always with you. Will meet in next video. Thank you so much again.